So the unit comes to an end, and here we are with the numericals. So based on what we have studied so far, we have to revise the formulas, what we have learned in the various principles and derivations. See, this is the summary of formulas which is to be used in numericals. The first formula is transformation ratio. The transformation ratio is E2 by E1. E2 is secondary induced EMF and E1 is primary induced EMF, equal to N2 by N1, which is turn ratio. N2 is secondary number of turns, N1 is primary number of turns, equal to I1 by I2. I1 is current in the primary side and I2 is the current in the secondary side, equal to K. This is the transformation ratio. Here we can add one more thing in this. The supply V1 and the voltage drop across load, that is V2 by V1, can also be added here. Real power, the formula is Vi cos phi. In the primary side it would be V1 I1 cos phi. In the secondary side P2 equal to V2 I2 cos phi. The third formula is of secondary current. This is simple Ohm's law. V equals to I into Z in case of AC. EMF equation, we have derived the formula in the derivation of EMF equation. E1 equal to 4.44 phi m, which is maximum flux. F frequency, which is 50 Hertz. N1 number of turns in primary. Similarly for E2, 4.44 phi m F N2. In the study of phasor diagram, we have studied about the approximate equivalent circuit, and these are the referred terms. The referred terms can be classified into two. First, when we referred all the terms to primary, so the formula for primary referred terms are given here. R1E would be R1 equivalent, which includes R1 plus R2 dash. R2 dash is the secondary resistance referred to primary, which is equal to R2 by K square through transformation ratio. Similarly, inductive reactance X1E equivalent is equal to X1 plus X2 dash. Here X2 dash is equals to X2 by K square. Similarly, for secondary referred terms, we have the formula R2E equal to R2 plus R1 dash, and then R1 will be equal to R1 into K square. Similarly for X2E, it would be X2 plus X1 dash, and X1 dash will be equal to X1 into K square. There is the basic difference between primary referred and secondary referred. In terms of, in the primary referred terms, R2 dash is equals to division by K square, and in the secondary referred terms, R1 dash will be equal to R1 multiplied by K square. This is the basic difference. Next, full load current. This is the basic power formula. I1 equal to VA divided by V1. Full load voltage drop. Voltage drop is equals to I1 full load into R1E cos phi plus X1E sin phi.
Maximum efficiency at full load, eta max is equals to kVA, which is the kVA rating of the given transformer in the numerical. Pi here is the iron loss, and PCU is the copper loss at full load. Efficiency at full load and efficiency on at n load and efficiency at half load. These all are basically a efficiency formula with the slight difference. Efficiency at full load is equals to VA cos phi, which is output power, upon VA cos phi plus losses, which is output plus losses equals to input. In terms of percentage will be multiplied by 100. Voltage drop on full load is equals to voltage drop at no load minus voltage drop at full load. What is no load, what is full load, we have already studied in voltage regulation. Efficiency at no load NVA cos phi divided by NVA cos phi plus Pi plus n square PCU at full load multiplied by 100. Here for half load n will be equal to 0.5, or we talk about quarter load, then n will be equal to 0.25. This could be a generalized formula for n load. This is condition for maximum efficiency, what we have derived. Pi equal to PCU when iron loss and copper loss are equal in the transformer, then the condition for maximum efficiency is achieved. Active and magnetizing current, these are the core component basically. We have studied in the last lecture. IC equal to I naught which is the no load current cos phi, and IM magnetizing current I naught sin phi. So let us start with the numerical. The first numerical, in the previous lecture I have already told about this numerical, but by the way, we see that the primary and secondary turns of a transformer are 150 and 75 respectively. The primary is excited at 220 volt 50 Hz, while the secondary is connected to a load impedance of 5 angle 30 degree ohm. Assuming the transformer to be ideal, calculate the primary and secondary currents, their power factor, and the primary and secondary real power. So while solving the transformers numerical, first we have to thoroughly read out the numerical and choose what they have given and then what they have asked. तो इस फैशन में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. पहले हमको क्या गिवन है इन्होंने देख लेते हैं हम कि इन्होंने बोला है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स, मतलब n1 और n2 की वैल्यू इन्होंने दी है. तो आपको n1 150 और n2 की वैल्यू 75 गिवन है, तो आप लिख लें n1 इक्वल टू 150 n2 इक्वल टू 75. आगे द प्राइमरी इज एक्साइटेड एट 220 वोल्ट 50 हर्ट्स, मतलब यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू गिवन है, V1 की वैल्यू गिवन है. V1 की वैल्यू 220 वोल्ट गिवन है, F की वैल्यू 50 हर्ट्स गिवन है. वाइल द सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू अ लोड इम्पिडेंस, तो यहाँ पर आपको ZL की वैल्यू गिवन है. अगर आप ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट याद करेंगे तो आपको सेकेंडरी साइड में एंड में एक ZL लगा हुआ मिलता था. ZL जो है वो एक लोड है, तो लोड की वैल्यू यहाँ पर 5 एंगल 30 डिग्री है. अज्यूमिंग द ट्रांसफॉर्मर टू बी आइडियल. अब आइडियल का मतलब ये दो चीज़ें हो सकती हैं. आइडियल का मतलब ये है कि एक तो लॉसेस नहीं हो रहे हैं ट्रांसफार्मर में कोई भी, और दूसरा अगर आइडियल है ट्रांसफार्मर तो डेफिनेटली जो भी E1 की वैल्यू है वो E2 के बराबर आएगी, और जो भी V1 की वैल्यू है वो डेफिनेटली E1 के बराबर आएगी, क्योंकि कोई लॉसेस हो नहीं रहे हैं ट्रांसफार्मर में और कोई लीकेज फ्लक्स भी नहीं. कैलकुलेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट्स, मतलब I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है. पहली चीज़
देयर पावर फैक्टर, मतलब कॉस फाई की वैल्यू बोलिए फाइंड आउट करने के लिए, है ना। एंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी रियल पावर का फॉर्मूला भी हमने देखा। रियल पावर मतलब अगर प्राइमरी साइड की बात करेंगे तो V1 I1 कॉस फाई, सेकेंडरी की बात करेंगे तो V2 I2 कॉस फाई। तो यहाँ पर हमको पता चल गया है कैसे हमको इसको सॉल्व करना है, क्या गिवन है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमको क्या गिवन था, N1 150, N2 75, V1 220 वोल्ट, ZL 5 एंगल 30 डिग्री। फॉर्मूला कौन से यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला हमें यूज़ होगा यहाँ पर। तो N1/N2 इक्वल टू V1/V2। यहाँ N1 गिवन है, N2 गिवन है, V1 भी हमको गिवन है, V2 हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड, ये एक फॉर्मूला ओम्स लॉ के हिसाब से I2 इक्वल टू V2/ZL। तो ZL हमको गिवन है, V2 हमने फर्स्ट फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ से हमको I2 मिल जाएगा। तो ये एक पहली चीज़ हमको फाइंड आउट हो गई कि हमको पूछा था कि कैलकुलेट दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट, तो हमको मिल गया यहाँ पर सेकेंडरी करंट विच इज़ I2। फिर देखें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से I1/I2 इक्वल टू N2/N1 होता है। तो N2/N1 में N2 और N1 हमें मालूम है, सेकंड फॉर्मूले से हमने I2 फाइंड आउट कर लिया, तो अब हमको यहाँ से मिल जाएगा I1। दो चीज़ें मिल गई हमको, प्राइमरी और सेकेंडरी करंट। अब आगे पूछा है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमको सीधे, अगर एंगल 30 गिवन है, इसका मतलब है फाई की वैल्यू 30 गिवन है, तो कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर होता है, तो सीधे हम कॉस 30 ले सकते हैं। और पावर फैक्टर के हिसाब से हमको P1 इक्वल टू V1I1 कॉस फाई में कॉस फाई मालूम हो गया, V1I1 ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, V1 गिवन था, I1 फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमको P1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये फॉर्मूला है आपका P1 इक्वल टू V1I1 कॉस फाई 1 और P2 इक्वल टू V2I2 कॉस फाई 2। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन है। बहुत इजी है, न्यूमेरिकल था, आया हुआ है एग्ज़ाम में, RGPV जून 2002। देख लें एक बार सॉल्यूशन, आगे बढ़ते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में आते हैं। A 200 volt by 50 volt 50 hertz single phase transformer is connected to a 200 volt 50 hertz supply with the secondary winding open. Primary winding has 400 turns. Number one, what is the value of maximum flux through the core? Second, what is the peak value of the flux if the primary voltage is 200 volt 25 hertz? Third, what happens to no load current? तो यहाँ पर एक इस न्यूमेरिकल में हमको सबसे पहली चीज़ जो गिवन है वो है कि एक 200 वोल्ट बाय 50 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसका मतलब है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 200 वोल्ट को 50 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे पता चल रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? कि आपका जो V1 है या आपका जो प्राइमरी वोल्टेज है वो ज़्यादा है और सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो कम है, तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर 50/200 वोल्ट होता तो दैट विल बी अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो देख के हमको पता चल रहा है यहाँ से कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, मतलब सप्लाई भी गिवन है यहाँ पर, ऊपर से ही पता चल रहा है। यहाँ पर फिर से उन्होंने बोल दिया विद द सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन। सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सारी चीज़ों बात होंगी वो किसकी बात होगी, नो लोड की बात होगी, नो लोड कंडीशन है ये। तो प्राइमरी वाइंडिंग हैज़ 400 टर्न्स, तो अगर N1 की वैल्यू यहाँ पर 400 गिवन है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं नंबर 1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू द कोर। तो पूछा है यहाँ पर फाइम। तो फाइम हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक उसमें से हमको फाइम मिला था जब हमने EMF इक्वेशन डिराइव किया था। तो फाइम E1 और E2 के फॉर्मूले में मिलता है हमको। तो यहाँ से इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू द कोर, तो फाइम हमको वहाँ से मिलेगा 4.44 F फाइम N1 या N2। तो आगे देख लेते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास E1 जो है वो 200 वोल्ट गिवन है, F जो है 50 हर्ट्ज है, N1 जो है 400 है। E1 की वैल्यू हमें मालूम है
200, 4.44 कांस्टेंट है, फाई एम फाइंड आउट करना है, एफ 50 हर्ट्ज है, N1 गिवन है। तो यहाँ पर E1 की वैल्यू फाई एम की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल का पार्ट था वो फाइंड आउट हो गया। अब इन्होंने बोला है कि फिर से पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स। पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स दोनों सेम चीज़ें। इफ़ द प्राइमरी वोल्टेज इज 200 वोल्ट एंड 25 हर्ट्ज, अगर यहाँ पर 50 हर्ट्ज से 25 हर्ट्ज कर दिया है अगर, तो एफ़ की वैल्यू चेंज करिए और फिर से पूछा है कि फाई एम की वैल्यू बताइए। तो यहाँ पर सेकेंड केस में एफ़ की वैल्यू जो है वो आप देख सकते हैं कंपैरिजन में 25 हर्ट्ज कर दिए। तो और यहाँ पे फाई एम की दो अलग अलग वैल्यू आ रही हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, 2.2522 मिली वेबर और यहाँ पर 4.5045 मिली वेबर। लास्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू नो लोड करंट। नो लोड करंट का क्या होगा जब आप फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे। तो एज द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज, डिक्रीज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी, जबकि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी चेंज या वेरिएशन ऑफर नहीं करता है, लेकिन अगर इफ़ frequency is changed from 50 to 25 hertz, as the frequency decreases the no load losses, that is core losses decreases, जबकि core loss क्या है, constant loss है, तो वो भी decrease होगा अगर कर देते हैं। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा अगर हो तो अगर no load loss को क्या होगा, अगर the frequency decreases the no load losses, यानी कि core loss also decreases as the no load current required to compensate the core losses also decreases, मतलब no load करंट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। व्हाट हैपन्स टू नो लोड करंट, नो लोड करंट विल बी डिक्रीज्ड। आगे देखें, 6600 बाय 440 वोल्ट सिंगल फेज 600 kVA, यहाँ पर 600 kVA आपको ट्रांसफार्मर की kVA रेटिंग गिवन है, हैज़ 1200 प्राइमरी टर्न्स, मतलब N1 की वैल्यू गिवन है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो फाइंड आउट कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होता है, E2/E1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू I1/I2 इक्वल टू K। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, और हमारे पास क्योंकि 6600/440 गिवन है, तो हम यहीं से डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंडरी टर्न्स बोला है तो N1/N2 इक्वल टू V1/V2 होता है, तो वहाँ से हम सेकेंडरी टर्न्स निकाल सकते हैं। वोल्टेज पर टर्न मतलब V1/N1 निकालना है, निकाल सकते हैं। सेकेंडरी करंट व्हेन इफ सप्लाइज अ लोड ऑफ 400 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर लगेंगे, ये अलग है। फोर्थ नंबर, सेकेंडरी करंट निकालना, I2 की वैल्यू निकालना है इफ सप्लाइज अ लोड ऑफ 400 किलोवाट एट 0.8 पावर फैक्टर लगेंगे, मतलब यहाँ पर आपको पावर का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपको गिवन है क्या, 0.8 पावर फैक्टर मतलब cos फाई की वैल्यू गिवन है। देखते हैं, ये है फॉर्मूला पावर का। तो यहाँ पर P2 इक्वल टू V2/I2 cos फाई में cos फाई आपको दे दिया, V2 आपको मालूम है, I2 आपने फाइंड आउट कर लिया है, और पूछ रहा है किसकी वैल्यू, सेकेंडरी करंट की, I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। P2 गिवन है, P2 कितना गिवन है भैया, 400 किलोवाट गिवन है। तो P2 400 किलोवाट रख दिया, cos फाई की वैल्यू 0.8 रख दी, तो यहाँ पर I2 की वैल्यू 1136.3636 एम्पियर मिल जाएगी। ठीक है, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पे बेस्ड ही फॉर्म न्यूमेरिकल था, कोई खास जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल है उनके जैसा न्यूमेरिकल था ये भी।